Good morning students. In this particular lecture, we will introduce you about the various engineering materials. Many engineering materials are important aspect for engineering design and analysis. बहुत सारे materials हैं जो already nature में available हैं. The importance of material science and engineering can be noted from the fact that historical ages have been named after material. In the customer-driven competitive business environment, the product quality is of paramount importance, permanent importance. The product quality has been found to be influenced by the engineering design. Basically, जो भी particular materials हैं, they have their importance as we are seeing in this particular paragraphs, and we can read it. कि engineering materials has their importance place. If we will classify the engineering materials, is the classification and selection of materials. The first module deals with the classification of engineering materials and their processing techniques. The engineering materials can broadly be classified. Engineering material को broadly हम classify कर सकते हैं as ferrous metals, non-ferrous metals such as aluminium, magnesium, copper, nickel, titanium. Next one is plastics such as thermoplastic, thermosets. Next one is ceramics and diamond. Next one is composite materials. Next one is nanomaterials. यानी इंजीनियरिंग मटेरियल को हम जनरली क्लासीफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की जो मटेरियल्स हैं. फेरस मटेरियल्स में as we are seeing, the engineering material are often primarily selected based on their mechanical, physical, chemical and manufacturing properties. जनरली जो हम मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं उनकी मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं. सेकेंडरी जो पॉइंट है दैट शुड बी कंसिडर्ड आर द मोस्ट एंड अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी. इट मीन्स मटेरियल सस्ती होनी चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए. अपीयरेंस देखने में अच्छी लगनी चाहिए, सर्विस लाइफ अच्छी होनी चाहिए, रिसाइक्लेबल होना चाहिए मटेरियल. इस टाइप की मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए. इन द प्रेजेंट डे अगर हम बात करते हैं, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस हैव फोर्स द डिज़ाइनर एंड इंजीनियर्स टू सेलेक्ट द एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स. आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो जो एनवायरमेंट के लॉ हैं वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइनर को और एक इंजीनियर को फोर्स करते हैं कि वो इस टाइप का मटेरियल सेलेक्ट करें जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, विच हैव मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जिसका कि एनवायरमेंट के ऊपर बहुत मिनिमम इम्पैक्ट हो. मटेरियल आर ऑफन सेलेक्टेड फॉर देयर मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग अंडर डिजायर्ड कंडीशंस. यानी मटेरियल को जनरली हम सेलेक्ट करते हैं उनके मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग अंडर डिजायर्ड कंडीशंस. When several materials are suitable for a particular design requirement, the cheapest one is usually selected. तो cheapest one को हम यहाँ से जनरली क्या कर सकते हैं, selected कर सकते हैं. Next one is the classification of processing technique. अगर हम processing technique को यहाँ पर classify करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर the basic aim of processing is to produce the product of the required quality at a reasonable cost. यानी इसका जो बेसिक एम होता है प्रोसेसिंग का वो होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना एक रीजनेबल कॉस्ट पर. द बेसिक प्रोसेसिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, जो बेसिक प्रोसेसिंग है उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी फॉर्मिंग प्रोसेस, डिफॉर्मेटिव प्रोसेसेस, मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस, joining processes and finishing processes. So these are the some basic processes that we classify. If further we will see the main classification of metal and alloy. metal and alloy को हम किस तरीके से यहाँ पे classify कर सकते हैं, then we will see that the most of the metals and alloy can be classified as, metal is further classified as ferrous और नॉन फेरस मेटल्स. बेसिकली जो फेरस मेटल्स होती हैं, अगर हम फेरस मेटल की यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जनरली जो फेरस मेटल्स हैं
उनमें को हम फर्दर स्टील में और कास्ट आयरन में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कास्ट आयरन आपका ग्रे कास्ट आयरन हो सकता है, डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन हो सकता है, वाइट आयरन हो सकता है और मिलिएबल कास्ट आयरन हो सकता है। जनरली कास्ट आयरन को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ग्रे, डक्टाइल, वाइट और मिलिएबल। एंड ऑन द अदर एंड स्टील इज फर्दर क्लासिफाइड एज लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाई एलॉय स्टील, तो उसमें आपका जो भी पर्टिकुलर टूल स्टील है वो हाई एलॉय स्टील होती है या स्टेनलेस स्टील है, दैट इज ऑल्सो द हाई एलॉय स्टील। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लो एलॉय स्टील में, देन फर्दर इट इज क्लासिफाइड एज लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। यानी लो एलॉय स्टील, लो, मीडियम और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील इज फर्दर क्लासिफाइड एज प्लेन एंड हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय। मीडियम कार्बन इज क्लासिफाइड एज प्लेन और हीट treatable carbon steel, and high carbon steel is further classified as plain or tool steel, plain steel और tool steel। फर्दर अगर हम यहाँ पर देखते हैं फेरस मटेरियल्स और वी कैन से स्टील्स, स्टील्स यानी एलॉय ऑफ कार्बन आयरन। स्टील जनरली किसकी एलॉय होती है? कार्बन और आयरन की एलॉय होती है। मे कंटेन अदर एलॉइंग एलिमेंट, यहाँ पर अदर एलॉइंग एलिमेंट भी हो सकते हैं। फेरस मेटल की कई सारी ग्रेड्स अवेलेबल हैं, सेवरल ग्रेड्स आर अवेलेबल। नेक्स्ट वन इज लो एलॉय, 11% वेट परसेंटेज क्रोमियम, टूल स्टील। लो कार्बन स्टील की अगर हम यहाँ पे बात करें, लो कार्बन स्टील के केसेस में तो फर्स्ट आता है प्लेन कार्बन स्टील। तो जो प्लेन कार्बन स्टील है, इट इज़ वेरी लो कंटेंट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट and a small amount of manganese. Plain carbon steel, it is the most abundant grade of steel is low carbon steel। सबसे ज़्यादा जो abundant grade है स्टील की, that is the low carbon steel। greatest quantity produced, least expensive, बहुत कम expensive है। next one is not responsive to heat treatment, यानी कि heat treatment के लिए responsive नहीं है। cold working needed टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करनी पड़ती है। गुड वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, अच्छी वेल्डेबिलिटी और मशीनेबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज़ हाई स्ट्रेंथ, लो एलॉय स्टील। एलॉइंग एलिमेंट लाइक कॉपर है, वेनेडियम है, निकिल है, मोलिब्डेनम है, अप टू 10% वेट, हैव हायर स्ट्रेंथ एंड मे बी हीट ट्रीटेड। और इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? हायर होती है, और इसको हम क्या कर सकते हैं? हीट ट्रीटेड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मीडियम कार्बन स्टील की, इन मीडियम कार्बन स्टील कार्बन कंटेंट इन द रेंज ऑफ 0.3% से 0.6% कैन बी हीट ट्रीटेड, इसको हीट ट्रीटेड कर सकते हैं। ऑस्टेनाइटाइजिंग, क्वेंचिंग एंड देन टेम्परिंग। नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन टेम्परिंग कंडीशन, टेम्पर्ड मार्टेनसाइट। नेक्स्ट वन इज मीडियम कार्बन स्टील हैव लो हार्डनेबिलिटी। जो मीडियम कार्बन स्टील है उसकी हार्डनेबिलिटी लो होती है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम, दैट इम्प्रूव द हीट ट्रीटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टील। हीट ट्रीटेड एलॉय आर स्ट्रोंगर बट हैव लो डक्टिलिटी। जितने भी हीट ट्रीटेड एलॉय होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं, बट उनकी डक्टिलिटी लो होती हैं। टिपिकल एप्लीकेशंस जस्ट लाइक रेलवे व्हील्स, ट्रैक्स, गियर्स, क्रैंकशाफ्ट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट वन इज हाई कार्बन स्टील। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाई कार्बन स्टील की, तो कार्बन कंटेंट अप टू 0.6 से लेके 1.4% तक, और हाई कार्बन कंटेंट प्रोवाइड हाई हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, हार्डेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल। यानी जो भी हाई कार्बन कंटेंट है वो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हाई हार्डनेस और हाई
स्ट्रेंथ, हार्डेस्ट एंड लीस्ट डक्टाइल, यानी जो हाई कार्बन स्टील है वो सबसे ज़्यादा हार्ड होती है और सबसे कम डक्टाइल होती है। इट इज़ यूज इन हार्डन एंड टेम्पर्ड कंडीशन, हार्डन एंड टेम्पर्ड कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग कार्बाइड फॉर्मर लाइक क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन आर एडेड as alloying element to form carbide of these metals. Next one is used as tool, die steel, owing to the high hardness and wearing resistance property. Next one is the effect of alloying element on steel, यानी कि जो स्टील है उस पर alloying element का क्या इम्पैक्ट रहता है। वन इज मैग्नीज, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, डिक्रीज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को डिक्रीज करती है, वेल्डेबिलिटी को डिक्रीज करती है, इफेक्ट हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, स्टील को हार्ड प्रोवाइशन करती है। नेक्स्ट वन इज फास्फोरस, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, डिक्रीज डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को डिक्रीज करता है, नॉच इम्पैक्ट टफनेस ऑफ स्टील। नेक्स्ट वन इज सल्फर, डिक्रीज डक्टिलिटी एंड नॉच इम्पैक्ट टफनेस, weldability decreases, found in the form of sulfide inclusions, सल्फाइड इंक्लूजन्स के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन, वन ऑफ द प्रिंसिपल डीऑक्सीडाइजर यूज इन स्टील मेकिंग, सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल डीऑक्सीडाइजर है स्टील बनाने में यूज़ होता है। इन लो कार्बन स्टील सिलिकॉन इज जनरली detrimental to surface quality. Next one is the copper, detrimental to hot working steel, beneficial to corrosion resistance, यानी copper is greater than 0.20%. Next one is the nickel, ferrite strengthener, increase the hardenability and impact strength of the steel. Molybdenum increases the hardenability, enhances the creep resistance of low alloy steel. Next one is the stainless steel. अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील इट इज़ a group of steels that contain at least 11% chromium, exhibit extraordinary corrosion resistance due to formation of a very thin layer of chromium oxide on the surface. And further these are the categories of stainless steels. ये स्टेनलेस स्टील की कैटेगरीज हैं जिनको हम देख सकते हैं, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, मार्टेंस्टिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील, प्रेसिपिटेशन हार्डनेस एंड डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। थैंक यू वेरी मच।